My name is Madhukar. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. Okay, in today's lecture, we will discuss multi-thread programming. Okay, so the thing is, what is multi-threading basically? Multi-threading in Java, we will discuss. So, what is multi-threading? Okay, multi-threading basically is a process of executing multiple threads simultaneously. Okay, definitely we are using multi-word. That's why we will discuss. We will use multiple threads. Okay, during execution. Okay, and you can also say concurrent execution of two or more parts of a program for maximum utilization of CPU. So basically multi-threading means we are using multiple threads simultaneously. Okay, so now the thing is, what is thread? Basically we are talking about thread. Basically we have processes, we have programs, okay, but we have thread also. Thread basically are lightweight process within our process. Definitely thread basically threads are not complete process. Basically it is a sub process, we can call it sub processes within a process. Yani ki threads basically are lightweight processes, okay, within a process. Okay, threads are executed inside a process. Basically it is a part of a process. Threads are parts of a process because we cannot execute thread explicitly. Okay, definitely we have to insert some sort of program, some sort of part of program that are being used to perform a specific task. Okay, then we insert those program inside a process. उसके बाद क्या होता है, वो process जब execute होती है उसके अंदर जो सब processes होती हैं, यानी कि light weight processes होती हैं जिनको हम threads बोलते हैं, वो उस particular process के साथ ही क्या होती है, execute होती है whenever those particular threads are being called, okay, invoked. Next क्या है, threads are independent. Means if we are using multi-threading, definitely we are using multiple threads. So here thread basically are independent. Okay, thread एक दूसरे पे depend नहीं करते हैं, separate thread run होते हैं. If you call a thread, then definitely that particular thread will be executed or will be invoked. जिस thread को आप call करोगे, जिस thread को आप invoke करोगे, वही thread क्या होगा, आपका invoke होगा और call होगा. If there occur exception in one thread, अगर किसी भी thread में एक exception आता है, error आता है, जैसे हमने last lecture में discuss किया था exceptions, right, runtime errors, okay, तो it does not affect other threads, but these threads use shared memory area. Okay, the threads are independent, they are not interconnected. Definitely one thread will not affect the execution of other thread, but still they use shared memory area, definitely. Okay, so here we are talking about threads. Threads are lightweight process, or we can call it sub processes in a process. Right, now threads can be created by using two mechanism. How we can create threads, क्योंकि सबके processes threads create करने के अलग अलग होते हैं, बट जावा ने अपना जो threads वाला जो कॉन्सेप्ट है, जावा में है मल्टी थ्रेडिंग है जावा में, तो जावा में जो थ्रेड्स हैं वो दो मैकेनिज्म के थ्रू क्या होते हैं, आप क्या कर सकते हो, उनको क्रिएट कर सकते हो. बिकॉज क्या होता है कि सब प्रोसेसेस हैं, जावा का एक एडवांटेज ये सबसे अच्छा है कि जावा के पास बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, राइट, जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर्स अपने प्रोग्राम में पर्टिकुलरली क्या कर सकते हो, आप उनकी फंक्शनैलिटी एक्वायर कर सकते हो. और जावा ने ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं. आप किसी भी स्टेज पे अगर आप बात करते हो जावा की, तो जावा की खुद की इतनी सारी प्री डिफाइंड क्लासेज है ना कि आप क्या कर सकते हो, जस्ट यू हैव टू इंपोर्ट दीज क्लासेज. जस्ट आपको क्या करना है, आपको एक्सटेंड करना है उन क्लासेस को, इनहेरिट करना है, या फिर और उससे पहले आपको उनके पैकेजेस को इंपोर्ट करना है, जिससे क्या होगा, बट वट एवर फंक्शनैलिटी दैट पर्टिकुलर क्लास हैज़, तो वो फंक्शनैलिटी आप अपनी क्लास में भी, अपने प्रोग्राम में, अपने कोड में क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो. तो सबसे पहला है हमारे पास एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, राइट. सेकेंड पॉइंट है बाय इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस. हमने लास्ट क्लास में इंटरफेस पढ़े थे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स में जब भी हम इनहेरिट करते हैं क्लासेस को, यानी कि अगर हम क्लासेस को इनहेरिट करें तो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, और जब हम लोग इंटरफेसेस को इनहेरिट करते हैं, जस्ट लाइक इनहेरिटेंस, तब हम लोग इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफेस, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इम्प्लीमेंटिंग, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एक्सटेंडिंग. ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं लाइफ साइकिल्स या स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड. एक थ्रेड में कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं, या उसकी लाइफ साइकिल कौन कौन सी हो सकते हैं, किस किस पर्टिकुलर स्टेजेस से वो मतलब अक्रॉस होता है, लाइक कौन कौन सी स्टेजेस को वो एग्जीक्यूट करता है. सबसे पहले आता है हमारा न्यू. जब भी कोई थ्रेड क्रिएट किया जाएगा वो अपनी कौन से स्टेज में होगा, न्यू स्टेट पे. ओके, व्हेन एवर अ न्यू थ्रेड इज क्रिएटेड ऑब्वियसली, एंड देन उसके बाद सेकेंड स्टेट आएगी आपकी एक्टिव.
एक्टिव स्टेट कब होता है? जब थ्रेड्स इन्वोक होते हैं, और थ्रेड्स को इन्वोक करने के लिए वी यूज स्टार्ट मेथड। ओके, जब आप स्टार्ट मेथड को क्या करते, कॉल करते हो, या फिर आप किसी भी थ्रेड पर स्टार्ट मेथड को कॉल करते हो, तब आपका क्या होगा, वो थ्रेड इन्वोक हो जाएगा, और वो फिर उसके बाद कौन से स्टेट में आ जाएगा? न्यू से एक्टिव स्टेट में। यानी पहले वो अपना थ्रेड यहाँ पे रहेगा न्यू स्टेट में, उसके बाद एक्टिव स्टेट। अगर आपने क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट मेथड को कॉल किया, तो वो अपनी एक्टिव स्टेट में पहुंच जाएगा। अब होता क्या है, नेक्स्ट स्टेट जो है उसकी, या तो वो ब्लॉक्ड हो जाएगा या फिर वेटिंग में चला जाएगा। मतलब क्या होता है, कुछ प्रोसेसेस ऐसी भी होती हैं जब एक थ्रेड बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव होता है फॉर स्पैन ऑफ टाइम, मतलब वो एक्टिव नहीं हो पा रहा होता है, या फिर स्पैन ऑफ टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए वो इनएक्टिव रह जाता है, या तो फिर उस थ्रेड को ब्लॉक कर दिया जाता है, और या तो फिर वो वेटिंग स्टेट में आता है, क्योंकि दूसरा थ्रेड है वो एग्जीक्यूशन में है। जब दूसरा थ्रेड एग्जीक्यूशन में होता है और अगर उस थ्रेड को उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो या तो वेटिंग स्टेट में रख दिया जाएगा या फिर उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि वो या तो वो क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इनएक्टिव है, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है। ओके, फोर्थ हमारी स्टेट है टाइम्ड वेटिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एक सिंपल सा एक है कि अगर बाई चांस एक थ्रेड कोई भी एग्जीक्यूशन में है और दूसरा थ्रेड उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को वेट कर रहा है, यानी कि वो एग्जीक्यूशन एक थ्रेड कर रहा है, दूसरा वेट कर रहा है। ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर जो प्रोसेस है, यानी कि जो थ्रेड है, सब प्रोसेस है, वो स्टारवेशन में चली जाए। स्टारवेशन एक कॉन्सेप्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें क्या होता है, जब बहुत टाइम तक किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस को कोई रिसोर्स नहीं मिलता है या फिर वो एग्जीक्यूशन में नहीं आ पाता है, तो वो स्टारवेशन में चला जाता है, यानी बहुत टाइम के लिए। तो उसमें क्या होता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग टाइम्ड वेटिंग। उस टाइम पे क्या करता है कि हम लोग स्लीप मेथड जो है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो, उस एक पर्टिकुलर थ्रेड को हम लोग कुछ टाइम के लिए स्लीप मोड पे डाल दें। ओके, यानी टाइम वेटिंग में डाल दें, एंड देन सेकंड जो थ्रेड है जो वेटिंग में था पहले से, वो क्या हो, अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे। उसके बाद लास्ट आता है हमारा टर्मिनेटेड, यानी जब हम लोग थ्रेड को जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं, यानी जब वो थ्रेड नो मोर इन द सिस्टम में रहता है। तो हमारी क्या साइकिल बनती है, अगर न्यू थ्रेड है, एक्टिव है, तो एक्टिव के बाद वो क्या हो सकता है, ब्लॉक्ड हो सकता है, या फिर वो कहाँ जा सकता है, वेटिंग स्टेट में, राइट। उसके बाद अगर वो वेटिंग स्टेट में भी है, क्या पता वो टाइम वेटिंग में भी पहुंच जाए, राइट, तो वो टाइम वेटिंग में भी आ सकता है। और अगर टाइम वेटिंग में भी है तो लास्ट में उसको हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी स्टेट्स है, किसकी, एक पर्टिकुलर थ्रेड्स की एक लाइफ साइकिल है, किसी पर्टिकुलर थ्रेड्स की। नेक्स्ट है थ्रेड क्रिएशन बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। हम लोग जब भी हमें थ्रेड क्रिएट करना है, राइट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ थ्रेड, देन डेफिनेटली यू हैव टू एक्सटेंड or you have to import this particular package, and then you have to extend, that is thread class, extends thread class। आपको थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना है, मतलब इनहेरिट करना है, राइट। ओके, एंड देन आफ्टर एक्सटेंडिंग, यानी कि आफ्टर इनहेरिटिंग दैट पर्टिकुलर थ्रेड क्लास, आपकी क्लास क्या कर सकती है, दिस क्लास, योर क्लास कैन ओवरराइड द रन मेथड अवेलेबल इन द थ्रेड क्लास। मतलब थ्रेड हमारी प्रीडिफाइंड क्लास है, उसके पास अपने खुद के रन मेथड है, स्टार्ट मेथड है, राइट। ओके, तो उसका यूज करके वो क्या कर सकता है, और आपका टर्मिनेटेड है, क्लोज मेथड भी है, राइट। तो आप उसका यूज करके क्या कर सकते हो, इनहेरिट करने के बाद आप रन मेथड को भी एक्वायर कर सकते हो अपनी क्लास में। उसके बाद अ थ्रेड बिगिंस इट्स लाइफ इनसाइड रन मेथड। जब वो एग्जीक्यूशन में आएगा तो अपनी लाइफ किस में स्पेंड करता है, रन मेथड के अंदर, क्योंकि एट द टाइम इट इज दैट पर्टिकुलर थ्रेड इज एक्टिव, और एक्टिव होने की वजह से इट इज इन एग्जीक्यूशन स्टेट, राइट। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इनसाइड द न्यू क्लास टू कॉल स्टार्ट, टू स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए थ्रेड। मतलब क्या होता है, हमें इन्वोक करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर थ्रेड को। अगर आप किसी थ्रेड को इन्वोक करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड क्या करता है, उस पर्टिकुलर थ्रेड को इन्वोक करता है। इन्वोक करने के बाद क्या होगा, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन इट विल डेफिनेटली एक्टिव इन द रन स्टेट। ओके, ऑब्वियसली जो रन मेथड जो होता है वो कैसे इन्वोक होगा, स्टार्ट मेथड के थ्रू। सबसे पहले हमें थ्रेड को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड व्हेन द थ्रेड इज स्टार्टेड, then particular start method will invoke run method, and then your execution will start। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, क्लास thr extend thread। सपोज करिए एक मेरी क्लास है, उसने किसको एक्सटेंड किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है, किसको, थ्रेड क्लास को, यानी इनहेरिट किया। लास्ट क्लास में मैंने इनहेरिट पढ़ा था, इनहेरिट किया हुआ है किसको, आपके थ्रेड क्लास को, राइट। उसके बाद हमने एक रन मेथड लिया, जिसको हमने क्या कर रखा है, ओवरराइड किया हुआ है अपने थ्रेड क्लास से, राइट। एंड देन मेन मेथड यूज किया, दिस इज हाउ वी क्रिएट अ थ्रेड। ये मैंने क्या किया, एक थ्रेड क्रिएट किया, यहाँ पे
थ्रेड क्रिएटेड। और इससे क्या होगा आपका, जैसे मैं स्टार्ट मेथड को इन्वोक करूंगा, हमारा थ्रेड क्या होगा, इन्वोक हो जाएगा, हमारा थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा एंड थ्रेड विल कॉल टू द रन मेथड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट के बाद आपका रन मेथड स्टार्ट होगा, उसके अंदर जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू क्रिएट अ थ्रेड इन आवर program by extending, by inheriting thread class. Okay, next is thread creation by implementing the runnable interface. Obviously इससे पहले हमने बात की थी कि हम लोग by inheriting thread class, right? अब हम लोग देखते हैं थ्रेड को कैसे बनाते हैं, by implementing the runnable interface. Because runnable interface क्या है, बेसिक इट इज अ इंटरफेस, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड कर, हमें इनहेरिट करने के लिए we will use implements कीवर्ड, राइट? जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम लोग इंटरफेस को इनहेरिट करना होता है, इंटरफेस इज इनहेरिटेड बाय इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। दिस इज हाउ वी कैन बेसिकली implements interface, enable interface, right? And then an object is created to call the start method. Definitely we create an object to call the start method, right? Okay, उसके बाद एग्जाम्पल्स में देखते हैं हमने कैसे स्टार्ट किया था। सबसे पहले हम लोग सपोज करो वी विल क्रिएट अ क्लास एंड देन आई विल इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस। दिस इज इंटरफेस। अब ये इंटरफेस जब हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे एंड देन वी डेफिनेटली वी कैन ओवरराइड द रन मेथड। ओके, रन मेथड को ओवरराइड किया, उसके अंदर मैंने कमांड लिखी थ्रेड डॉट करंट थ्रेड गेट आईडी, यानी जो अभी रनिंग थ्रेड है उसकी आईडी मिल जाए मेरे को। ओके, एंड देन नेक्स्ट फिर मेन मेथड, उसके बाद मैंने एक अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? एंड देन आई क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। मैंने एक थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि डेफिनेटली देन वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मेथड के लिए। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन आई पास दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट इनटू दिस पर्टिकुलर थ्रेड ऑब्जेक्ट। और इससे मैंने क्या किया, आप इसको स्टार्ट कॉल किया, देन आई विल इन्वोक द रन ऑल्सो। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली क्रिएट अ थ्रेड यूजिंग रनेबल इंटरफेस। ओके, मतलब डेफिनेटली इन द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू बेसिकली इम्प्लीमेंट रनेबल, राइट? एंड इससे पहले आपको अगर है तो आप इंपोर्ट करेंगे पैकेजेस को एज वेल, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग बेसिकली क्या थ्रेड, राइट? हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड को हम लोग इनहेरिट, पहले तो अगर हमें इंप्लीमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड क्लास को बेसिकली import package import करेंगे, then we will start using these particular things. Okay, but we have to create an object for runnable interface. Okay, next thread class versus runnable interface. अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, हम why we are using thread class and why we are using runnable interface. Obviously there will be a difference, definitely there will be difference between these two things, because if you are using thread class there might be some other functionality, if you are using runnable interface might be some other functionality. Okay, number one, if we extend the thread class, our class cannot extend any other class, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे multiple inheritance is not possible. Java multiple inheritance class के थ्रू सपोर्ट नहीं करता है, that's why we use interface to acquire or to provide multiple inheritance, right? So here if we extend a thread class, we cannot extend any other class because Java does not support multiple inheritance. Okay, that's why we use runnable interface, because runnable interface can still extend other base classes as well because it supports क्या multiple inheritance. Next है we can achieve basic functionality of a thread by extending thread class because it provides some inbuilt method. यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑलरेडी, क्योंकि प्री डिफाइंड क्लास है और प्री डिफाइंड क्लास में हमारे इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो क्या करता है, हमें एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ईल्ड, इंटरप्ट और भी बहुत सारे मेथड हैं जो कि अवेलेबल नहीं है कहाँ पर, रनेबल इंटरफेस में अवेलेबल नहीं है। ओके, दैट्स वाई वी ट्राई टू यूज थ्रेड क्लास। नेक्स्ट आता है यूजिंग रनेबल विल गिव यू एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल थ्रेड्स।
अगर हम रनेबल इंटरफेस का यूज़ करते हैं जिससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स में यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को भी हम लोग कॉल कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी क्रिएट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड क्लास एंड रनेबल इंटरफेस. That's why we use different things in different classes as well. If you are using thread class, you have different functionality, but they have the same methods. But if you are using runnable interface, you are using different functionality. Okay. नेक्स्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग. एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं मल्टी थ्रेड कैसे हम बना रहे हैं. मैंने क्या किया, अपनी क्लास बनाई. अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ थोड़ा सा एक पैकेज, जिससे कि आपको थोड़ा सा रहे java .lang .thread. ओके या फिर java.lang. आप इतना भी कर सकते हो. आप यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हो, राइट. तो इट एक्सटेंड थ्रेड क्लास डेफिनेटली. देन आई क्रिएटेड रन मेथड. रन मेथड के बाद मैंने एक मेन मेथड बनाया जिसके अंदर मैं कुछ भी अपना स्टेटमेंट या कमांड लिख सकता हूँ. देन आई क्रिएटेड अ मेन मेथड. उसमें मैंने क्या किया, अपनी क्लास का एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, राइट. फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, 2, 3, और सभी मैंने मोस्टली क्या किया, T1 T2 को मैंने क्या किया, स्टार्ट को कॉल किया. जिससे क्या होगा, हर एक थ्रेड क्या करेगा, रन मेथड को इन्वोक करेगा, राइट. इससे क्या होगा, हमारे मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट होंगे और मल्टीपल थ्रेड क्या करेंगे, मल्टीपल एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कराएंगे. दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट मल्टी थ्रेड इन योर कोड और इन योर प्रोग्राम, बिकॉज मल्टीपल थ्रेड आर नेसेसरी. बिकॉज हमें क्या होता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड कराना है. अब जब कंकरेंट एग्जीक्यूशन होगा तो आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल थ्रेड्स को मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हो. और उसके बाद क्या होगा, आपकी जब कंकरेंसी आ जाएगी, कंकरेंसी से क्या होगा, आपके यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा. सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ने से क्या होता है, हमारा थ्रूपुट ज़्यादा आएगा. ठीक है, राइट. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड. थ्रेड्स को हम लोग कैसे प्रायोरिटी देते हैं, राइट. क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, और थ्रेड्स वैसे तो थ्रेड जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहते हैं, यानी जो पहले आएगा वो पहले एक्सिक्यूट हो जाएगा. बट स्टिल इफ़ यू वांट टू चेंज द प्रायोरिटी और इफ़ यू वांट टू सेट द प्रायोरिटी, तो उससे क्या होगा कि आप अपने थ्रेड्स को प्रायोरिटी दे सकते हो, जिससे आपका थ्रेड अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से क्या हो, एग्जीक्यूट हो जाए. यानी अगर आप किसी थ्रेड को फर्स्ट प्रायोरिटी सेट करते हो तो वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर किसी थ्रेड को नेक्स्ट प्रायोरिटी सेट करते हो तो वो नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो हर एक थ्रेड की अपनी एक प्रायोरिटी होती है एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट. बट इसमें क्या होता है, प्रायोरिटीज आर रिप्रेजेंट बाय अ नंबर. हम लोग क्या 1 से 10 के बीच में प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं. ठीक है, हम 1 से लेकर 10 के बीच में एक नंबर असाइन कर सकते हैं अपने थ्रेड्स को, जिससे क्या होगा, उन थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेट हो जाएगी, राइट. मोस्ट केसेस में क्या होता है, थ्रेड शेड्यूलर जो है हमारे, वो शेड्यूल करते हैं थ्रेड्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी. यानी जैसे हम प्रीएम्प्टिंग शेड्यूलिंग में देखते हैं, जैसे आपके सब प्रोसेसेस आना स्टार्ट होंगी, यानी लाइट वेट प्रोसेस, तो उनको वो क्या करता है, शेड्यूल कर देता है उनके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग. यानी कभी कभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी होता है, तो पहले जो आएगा वो पहले सेट हो जाएगा और वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा. बट ये कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा पॉसिबल ही रहे हमेशा. ओके, तो JVM क्या करता है कि JVM आपको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा थ्रेड पहले चलाना है और कौन सा थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट कराना है, राइट. तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर्स जो हैं वो अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट कर सकते हैं. यानी कि प्रोग्रामर क्या सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ थ्रेड की एक्सप्लिसिटली सेट कर सकते हैं. JVM जरूरी नहीं है कि JVM ही प्रायोरिटी सेट करे, स्टिल यू कैन ऑल्सो सेट द प्रायोरिटीज ऑफ योर थ्रेड्स एज वेल. क्योंकि थ्रेड्स आर सब प्रोसेस. आपको जब भी कोई एडिशनल फंक्शनलिटी चाहिए होती है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है, तो आप अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोसेस में थ्रेड इंसर्ट करते हो. ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, यानी सब प्रोसेस इंसर्ट करते हो, एंड देन यू सेट द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनलिटी, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. ओके, अब इनके प्रायोरिटी सेट करने के लिए हमें क्या करना है, सेटर है मेथड का यूज़ करना है, और उस प्रायोरिटी को एक्सेस करने के लिए हमें गेटर मेथड यूज़ करते हैं फॉर द थ्रेड प्रायोरिटी. ओके, पहला मेथड जो है वो है हमारा पब्लिक फाइनल इंट गेट प्रायोरिटी. इससे क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी मिल जाएगी. अगर आप अपने किसी भी थ्रेड पर, यानी जैसे सपोज करो मेरा T थ्रेड है, यानी T1 थ्रेड है, T1 थ्रेड डॉट गेट प्रायोरिटी, अगर आप ये मेथड रन कराते हो तो इससे क्या होगा, इस पर्टिकुलर थ्रेड की जो T1 है,
इस थ्रेड की आपकी क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी आपको पता लग जाएगी, ये थ्रेड, इसकी थ्रेड की क्या प्रायोरिटी सेट हो रखी है, यानी आपके शेड्यूलर ने इस पर्टिकुलर थ्रेड की क्या प्रायोरिटी पहले से ही सेट कर रखी है JVM के थ्रू, ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई है तो ओके, उससे क्या होगा, ये वाला जो मेथड है यानी कि जो गेट प्रायोरिटी मेथड है हमारा, ये क्या रिटर्न करता है, हमारे रिटर्न्स द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड, राइट। यू कैन इजीली नो द प्रायोरिटी, और जब आपको प्रायोरिटी पता चल जाएगी देन यू कैन ऑल्सो चेंज द प्रायोरिटी और यू कैन ऑल्सो सेट द प्रायोरिटी, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक फाइनल वॉइड सेट प्रायोरिटी। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज सेट प्रायोरिटी। सेट प्रायोरिटी में क्या होता है, आपको प्रायोरिटी का एक इंटीजर वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब आप कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे सकते हो, 1 to 10 तक, और 1 to 10 के बीच में आपकी वैल्यू जो भी आप असाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। मतलब हम लोग इस तरीके से, अगर मैं लिखूँ इसी T1 की T1 डॉट सेट प्रायोरिटी, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देता 2 तो इसकी प्रायोरिटी 2 सेट हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन सेट द प्रायोरिटी। आप इस तरीके से क्या करते हो, अपने प्रायोरिटी को सेट कर सकते हो, राइट। तो ये जो मेथड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आपके प्रायोरिटी को असाइन करा सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी, अपने थ्रेड की प्रायोरिटी को क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट द न्यू प्रायोरिटी और यू कैन ऑल्सो अपडेट द प्रायोरिटी। तो इसमें क्या होता है, मिनिमम जो है हमारी 1 और मैक्सिमम 10 वैल्यू तक हम दे सकते हैं इस पर्टिकुलर थ्रेड को प्रायोरिटी, ओके। बट अगर आप वैल्यू आपकी ज़्यादा जाती है ना, आउट ऑफ रेंज जाती है 1 से 10 के बीच, तो वो आपको एक एरर शो कर देगा, डेट इज एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, बिकॉज हम लोग वी कैन नॉट गिव लेस देन 1 एंड मोर देन 10, ओके, प्रायोरिटीज, ओके। तो नंबर हमारे जो रहेंगे 1 to 10 के बीच में ही रहेंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हैं। और अगर इससे ज़्यादा नंबर हुआ 10 से मैक्सिमम, अगर मोर देन 10 हुआ या फिर लेस देन 1 हुआ, देन इट विल डेफिनेटली थ्रो एन एक्सेप्शन, दैट इज इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, क्योंकि यह मेथड इससे ऐसा आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता है, राइट। इसके बाद आता है प्रायोरिटी ऑफ ए थ्रेड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे हम लोग सेट कर रहे हैं प्रायोरिटी, ओके। सबसे पहले वही सेम, हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है पैकेज, क्योंकि बिकॉज वी रिक्वायर्ड क्लासेज, हमें क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, जो कि यानी कि जो मेन हमारा थ्रेड है, क्योंकि थ्रेड के अंदर ही सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, यानी सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। हम उसी को, जब तक हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उस पैकेज के अंदर की क्लासेस हमें नहीं मिल पाएंगी, राइट। तो डेफिनेटली यू हैव टू इंपोर्ट द पैकेज। हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में पैकेज पढ़ा था, देन यू कैन ईजिली नो, फर्स्टली यू हैव टू इंपोर्ट द पैकेज एंड देन द क्लासेज ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय योर क्लास एज वेल बाय इंपोर्टिंग पैकेज, राइट। एंड देन मैंने एक क्लास बनाई थ्रेड प्रायोरिटी, जो किसको इनहेरिट कर रही है, थ्रेड को, ओके। फिर मैंने एक रन मेथड बनाया, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट मेथड को कॉल करूंगा, अपने थ्रेड से स्टार्ट को कॉल करूँ, तो वो किसको इन्वोक करेगा, आपके रन मेथड को। रन मेथड के अंदर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनसाइड द रन मेथड। उसके बाद मैंने क्या किया, एक मेन मेथड बनाया। अब मैंने थ्रेड करना स्टार्ट किया विद द थ्रेड प्रायोरिटी क्लास, ठीक है। जैसे जो थ्रेड प्रायोरिटी मेरी क्लास थी, उससे मैंने एक 3h1 थ्रेड बनाया, फिर 3h2 थ्रेड, 3h3 थ्रेड, क्यों, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट थ्रेड एज वेल, ओके। अब यहाँ पे हमने प्रायोरिटी सेट नहीं की हुई है, वी डिड नॉट मेंशन द प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड, सो देयरफॉर द प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड इज 5। द डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है थ्रेड की प्रायोरिटीज की, वो हमेशा क्या होती है, 5 होती है, राइट। एंड देन मैंने क्या किया, एक प्रिंट मेथड लगाया, उसमें मैंने क्या किया, th1 की डॉट गेट प्रायोरिटी यूज किया, यानी इससे हम लोग क्या कर सकते, वी कैन गेट द प्रायोरिटी वैल्यू, ओके। इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे अभी इस पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि डेफिनेटली आपको क्या करना है, इनिशियली यू हैव टू नो द प्रायोरिटी एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सेट द प्रायोरिटी, राइट। उसके बाद एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे, उसी का कंटिन्यू है एग्जाम्पल। फिर हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्रायोरिटी को डिस्प्ले करने का सोचा, तो हमने क्या किया, उसको प्रिंट मेथड में डाला, यू कैन इजीली डिस्प्ले द प्रायोरिटी। अब नेक्स्ट इज हाउ टू सेट द प्रायोरिटी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि थ्रेड के जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप रेफरेंस वेरिएबल पे आप सेट प्रायोरिटी मेथड चलाओ, ठीक है। सेट प्रायोरिटी में आप इंटीजर वैल्यू जो दोगे वो उसकी प्रायोरिटी बन जाएगी, और इंटीजर वैल्यू कहाँ था, रेंज क्या रहेगी हमारी, रेंज हमेशा 1 to 10 रहने वाली है, यानी इसी के बीच में आप अपने थ्रेड्स की प्रायोरिटी सेट कर सकते हो टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर थ्रेड। तो मैंने क्या किया, एक थ्रेड की प्रायोरिटी 3 रख दी, दूसरे थ्रेड की प्रायोरिटी सेट किया 2 एंड देन अदर वन इज 7, ओके।
इससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा आपकी प्रायोरिटी सेट हो गई है, देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। आपने क्या किया उसके बाद, system.out.println currently executing the thread, इससे मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर थ्रेड का जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उससे मैंने क्या किया, थ्रेड का नेम ले लिया एंड देन उसकी प्रायोरिटी भी उसी से फाइंड कर ली, जिससे क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है। ओके और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपल है, आप अपने थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हो, यानी th1 डॉट स्टार्ट, ओके th2 डॉट स्टार्ट एंड th3 डॉट स्टार्ट। ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपके रन को इन्वोक कर देंगे और इससे आपका रन इन्वोक हो जाएगा और देन योर एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट। ओके दिस इज हाउ यू कैन सेट द प्रायोरिटी एंड दिस इज हाउ you can get priority. Okay, these are the methods to set the priority and to get the priority. Okay, so these methods are being used in thread to set the priority or to get the priority. So this is the multi-threading concept. Okay, thank you everyone.